अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं अपने कंट्री की शान को बहुत ही आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद खुर्रम खान एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को इंग्लैंड में चाइल्ड सेक्स के ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है और उनको अदालत में पेश किया जाएगा। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। मोहम्मद खुर्रम खान के ऊपर चार्जेस हैं कि दो चार्जेस हैं अंडर एज लड़कियों के साथ हरेसमेंट का। मोहम्मद खुर्रम खान इसी साल अपने बेटे की लॉ ग्रेजुएशन की सेरेमनी के लिए लंदन आए थे विजिट वीज़ा पे। ये एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के, और आपको कौन बनेगा करोड़पति का कोई मैं सवाल नहीं रखूंगा आपके सामने कि किस पार्टी से ताल्लुक़ है। हर पार्टी में ऐसे ही लोग हैं, लेकिन इमरान खान की पीटीआई के ऐसे ही लोग हैं। इसके फादर मोहम्मद हनीफ खान मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रहे हैं 2 बार, और एक बार डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के एक बार इसके फादर पीपल्स पार्टी के फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं। ये हाईली एजुकेटेड बंदा है और इसके पास भी लॉ की डिग्री है, लेकिन इसने लॉ नहीं किया। पीटीआई के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली शहजादा गुस्ताब खान का ये कज़न है। अजीज़ दोस्तों, इसके ऊपर चार्ज ये है कि इसने एक 17 साल लड़की को सेक्स के लिए वो किया, और पुलिस डिटेक्टिव्स ने इसको टारगेट करके अरेस्ट किया। ये पाकिस्तानियों की खासियत है, और पाकिस्तानी ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इंडियन और बंगाली मुसलमानों का ये हाल है, इसलिए कि ये सब मदरसे से निकल के आते हैं। फिर आप कितनी भी अच्छी तालीम हासिल कर लें, आपका वो तालीम कुछ नहीं बिगाड़ती। जब आप मदरसे में जाते हैं तो आपको ये सबक दिया जाता है कि ये ज़िंदगी टेम्परेरी है। असल ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है, जिसमें आपको जन्नत में जाना है। वहाँ 72 हूरें होंगी, और फिर हूरों की डिस्क्रिप्शन दी जाती है, और सेक्स की डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि कितना लंबा इंटरकोर्स होगा, और ये और वो। ऐसा जहन बना दिया जाता है कि सिवाय सेक्स और आफ्टर लाइफ, यानी मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए हर आदमी जीता है। तो फिर वो इस ज़िंदगी को जहन्नम बनाता है, क्योंकि फिर आपको साथ में ये सबक भी दिया जाता है कि काफिरों को मारना सवाब है, जन्नत का शॉर्टकट है। तो आप फिर क्या करोगे? Is the chapter of jihad, so nobody says we're making things up. Chapter of jihad. We will open the chapter of jihad that is present in all of our mosques, that I wish that I could be killed for the sake of Allah, then brought back to life, then killed, then brought back to life, then killed, then brought back to life, then killed once again, and then you go become a martyr and you go and you get your 72 virgins. And this is not something that we are just reading. This is not a magazine. This is Sahih al-Bukhari, the authentic. Sahih means authentic. After intense filtration for 1,200 years, this is what we have now come with to form the religion of Islam. So when you see its non-stop attacks towards the West, you know why. Because they themselves wish to die, come back to life, to die again, come back to life, and die and come and non-stop. This love for death that they have, I don't know where it comes from. Do you know where it comes from? It comes from this book. We have to hate the places of worship where they are committing shirk with Allah. Which times of the year do we have to hate? Christmas. Likes of Christmas. Mawlid. The likes of Mawlid and Nabawi. Because it's an innovation in the religion.
We have to hate it, not because it makes us feel good, not because we say we're better than them, because it is hated to Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise Valentine's Day, likewise birthdays, likewise Christmas, likewise Easter, likewise Diwali, likewise Hanukkah, likewise all of these other different festivals where the people increase in their sin, in their transgression, in their shirk with Allah subhanahu wa ta'ala. And it's not a personal hatred, we hate it because Allah hates that thing. You hate me for the sake of Allah. I hate you for the sake of Allah. All right. I hate you for the sake of Allah. Every Christian, I hate you all for the sake of Allah. Any Jew, any Christian, I hate you all for the sake of Allah. He hates me for the sake of Allah. You hate these bastards and the other bastards. Would you kill me if you get a chance? If we're at war, I would chop your head off. When you wonder what is the root for terrorism, this book, this here, when the Muslim is taught that your Prophet wishes to die and come back to life once again, just in order to die again, you can't blame the 15-year-old and the 17-year-old and the 22-year-old to want to go and blow themselves up. You cannot blame them. This is in the book, and this book. अब इमाम तौहीदी ने आपको रेफरेंस के साथ, सही बुखारी के रेफरेंस के साथ सब चीज़ें बताई, तो फिर आप ऐसे जाहिल घोल ही पैदा करोगे। फिर हमें हैरत नहीं होती कि किर्गिस्तान में आपके साथ क्या हो रहा है। मैं किर्गिस्तान की तरफ जाने से पहले ये दो छोटे और वाक़यात बता दूं कि ये देखें, ये कुछ पाकिस्तानी गए थे मिस्र, इजिप्ट, वहाँ फ़रौन की जो मम्मी है ना, उस पर फातिहा पढ़ रहे है ना, जहालत की इंतहा। और ये एक यूट्यूब वीडियो चैनल है जिसमें वो इस्लामिक कहानियाँ बताता है। अल्लाह वाले ने पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया, और फिर सुभान अल्लाह वाले लोग होंगे। अब अजीज दोस्तों, किर्गिस्तान वाले वाक़ये की तरफ आते हैं। क्या वजह है कि किर्गिस्तान में इतने सारे कंट्रीज़ के लोग हैं तो सिर्फ पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है? कुछ तो है ना। ये जो अभी ऊपर खुर्रम खान की जो हमने कहानी सुनाई इंग्लैंड में, पाकिस्तानी इंसान का बच्चा बन के तो कहीं भी नहीं रह सकता ना, उसने अपनी औकात तो दिखानी होती है। अब मैं जब ये बात अपने बच्चों को बताई तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा किर्गिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री नहीं है। तो मैंने कहा वहाँ मेजॉरिटी मुसलमान है, लेकिन आपको सेंट्रल एशियन मुस्लिम कंट्रीज़ की डेमोग्राफी को समझना होगा। मुग़ल भी सेंट्रल एम्पायर से आए थे। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी, ये सब एक्सट्रीम फ़िरके नहीं हैं, वो सूफ़ी इस्लाम वाले हैं। वो लोग इन चक्करों में नहीं पड़ते। आप 500 साल 800 साल पहले जो मुग़ल आए थे और ये आए थे, वो ज़माने दूसरे थे। उस ज़माने में तो जिसके पास थोड़ा लश्कर होता था, चंगेज़ खान के पास भी कुछ कबीले जमा हुए तो जाना शुरू कर दिया ना। फिर इंसेंटिव होता है। उस ज़माने में कोई इंडस्ट्री, ये चीज़ें थोड़ी होती थी। इंसेंटिव होता था कि चल भाई फ़ौज में भर्ती हो जाओ। जिस इलाके को फतह करते उसके आदमियों को कहते थे फ़ौज में भर्ती हो जाओ। चंगेज़ खान वगैरह कोई मुसलमानों का हिसाब किताब थोड़ी था कि सारे नॉन मुस्लिमों को मार दो और ये कर दो वो कर दो। फौज में भर्ती होते जाते थे। ब्रूटलिटीज़ के इंसेंटिव था, लड़कियां मिलेंगी, माले गनीमत मिलेगा। तो वो ज़माना और था। आज का जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, एक तो ये 1917 से पहले ज़ार के रशिया के इन्फ्लुएंस में थे, और फिर 1917 के बाद लेनिन के सोवियत यूनियन के कॉलोनी रहे हैं, उन पे कब्जा रहा है। वो कम्युनिज्म की वो शाख थी जो कि एथेइस्ट कहलाते थे अपने आप को। तो इन्होंने इस्लाम को बिल्कुल ही कुचल के रख दिया था। और बाद में जब ये आज़ाद हुए सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, तो इनके अंदर वो एक्सट्रीमिज़म वाले जरासीम नहीं थे जो इधर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान वगैरह में हैं, ईरान में हैं। वहाँ पे पर्शियन ब्लॉक कहलाता है। वहाँ पे पर्शियन काफ़ी हद तक बोली जाती है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, आज़रबाईजान और ये दूसरे जो इस्लामिक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं,
उसकी डेमोग्राफी, उसका हिसाब किताब दूसरा है। वहाँ पे ये एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तानी पहुँच गए। असल फड्डा तो सुना है कि शुरू हुआ एक इजिप्शियन उसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ। अब दूसरा ये कि वहाँ पे इतना पाकिस्तानी क्या करने गया था, तो पता चला ये कि वहाँ पे एजुकेशन हासिल करने गए थे, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन तो 3rd क्लास है ना, यहाँ से तो डफर ही निकलेंगे ना। जैसे कि मैं पहले एक वाक़या बता चुका हूँ कि सऊदी अरब में मैं जब रियाद बैंक में ट्रेनिंग सेंटर में कोऑर्डिनेटर था, तो मैं जब 85 में सऊदी अरब से एक हफ्ते की रमज़ान की छुट्टियों में घूमने लंदन आया था, तो जब लंदन में हमारे काफ़ी सऊदी स्टूडेंट पढ़ने के लिए हम भेजते थे, तो वो वहाँ पे रहते थे। तो जब मैं वापस गया तो मेरे मैनेजर ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या देखा उधर, हमारे स्टूडेंट्स की क्या हाल है। तो मैंने कहा वो ज़्यादातर तो लड़की शराब उन चक्करों में रहते हैं, और आज भी पेरिस को बारिश कहते हैं। अरबी में प की आवाज़ नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेट प नहीं है, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं, इसी तरह पेरिस को बारिश कहते थे। तो मैंने कहा, मैं उनसे मिला, एक हमारे आती बरका करके थे, उनसे मिला, तो मैंने कहा कहाँ क्या हाल है ये वो, तो बोला मैं कल ही बारिश से आया हूँ, इंग्लिश में कहा मुझे। तो मैंने कहा कि अभी भी उनका वही हाल है। तो उसने मुझे, मैनेजर ने एक जुमला कहा था जो मैं कभी भूला नहीं, और वाकई एक फ़नी जुमला था। उसने कहा कि राह हुमार जाए हुमार, यानी गधे को आप कहीं भी भेज दो, किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी भेज दो, वो वापस आएगा तो गधा ही रहेगा। तो यही मदरसा छाप इन मुसलमानों का, ख़ास तौर पे साउथ एशियन मुसलमानों का हाल है। अब ये किर्गिस्तान पढ़ने गए हैं, ये लॉ डिग्री वाला खुर्रम खान अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए लंदन आता है। तुमको कुछ शर्म है कि नहीं 17 साल की एक लड़की के साथ चक्कर चलाते हो? क्योंकि आपके जहन में शुरू से ही सेक्स भरा हुआ है, और फिर आप ज़ाहिर है उस लड़की के साथ सेक्स करने के बाद आप उसको मुसलमान करने के चक्कर में लगे रहोगे कि आपकी जन्नत पक्की हो जाए। तो ये सारे हिसाब किताबें किर्गिस्तान में क्यों अचानक पाकिस्तानी सब जाओ इधर से? भाई इंडियन भी तो रहते हैं ना। एक सड़क पे आदमी जा रहा है, इंडियन है कि पाकिस्तानी, पहचानना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दोनों एक ही डीएनए के हैं, दोनों एक ही रीजन है, दोनों की एक ही हिसाब किताब है। तो उनको क्यों? अब दूसरा ये है कि इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हंगामा खड़ा कर दिया, ओ ये हो गया वो हो गया, 2 मिनिस्टर जाओ तुम लोग उधर जाके देखो क्या हो रहा है। अबे मिनिस्टर वहाँ जाके क्या करेंगे? सिंपल सा, मतलब एक मिसाल है कि भारत के स्टूडेंट कहीं फंसते थे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीधा फ्लाइटें भेजते थे कि लेके आओ भाई अपने बच्चों को। यहाँ पे ये ऐलान किया गया कि उनको हम लेके आ रहे हैं, जबकि जो आए हैं वो कह रहे हैं हम अपनी टिकट पे आए हैं, हमारे को एम्बेसी भाव नहीं पूछ रही। नंबर दिखाए जा रहे हैं, फ़ोन नंबर लगाए जा रहे हैं जगह जगह के, पाकिस्तान एम्बेसी से कांटेक्ट करो, ये इमरजेंसी फ़ोन नंबर है। वो बेचारे कह रहे हैं भाई हमारे को तो एम्बेसी का वो फ़ोन नंबर पे कोई जवाब ही नहीं आ रहा, बंद पड़े हैं वो नंबर। इस तरह इनको सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तानी जहाँ फंसता है ना, वहाँ पे सरकार उनकी मदद के लिए नहीं जाती। हमें अच्छी तरह याद है कि कोविड में भारत ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निकाला था। रशियन यूक्रेन वार में भी भारत ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मदद की थी। पाकिस्तान की सरकार तो सिवाय एलिट के किसी की मदद के लिए है ही नहीं ना। पाकिस्तान की सरकार सिर्फ एलिट्स की मदद के लिए होती है। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन के किर्गिस्तान में जो बच्चे वापस आए हैं उनका हाल ख़राब है, और उन्होंने आके वापस यही बताया है कि भाई साहब हमारा भाव किसी ने नहीं पूछा, हम वहाँ पे बेयारो मददगार थे और हमें किसी ने वहाँ पे लिफ्ट ही नहीं कराई, किसी तरह पे हम खुद अपनी जान बचा के आए हैं, वहाँ पे कोई भाव पूछने वाला नहीं है। तो भाई पाकिस्तानियों का यही है कि पाकिस्तानी यहाँ हो, यूरोप में कहीं और हो, इवन विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तानियों का कोई हाल पूछने वाला कहीं भी नहीं है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं ये मुबशिर लिकमान की एक वीडियो आपके सामने लगा रहा हूँ, जिसमें वो बता रहे हैं पुराना हिसाब किताब जब एग्रीमेंट हुआ था। और ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स होते हैं ना पाकिस्तान में, आर्मी की छितर छाया में चीज़ें होती हैं, उसमें जजेस भी शामिल होते हैं। ये 3 मिनट की वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ,
एंड अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप ये सपोर्ट. देखिए ना, ये क्योंकि उस वक्त तो जनरल जहीरुल इस्लाम जो थे, वो भी, अब हम जानते हैं तारीख तो बड़ी तल्ख होती है, वो कोई चीज़ें मस्ख नहीं करती, आज चीज़ें सामने आ जाती हैं. उस वक्त उनका था इरादा कि भाई इसको डिस्टेबलाइज करना है. बहरहाल ये मैंने कहा चूंकि देखिए, आप मैं आपको बात बता रहा हूँ जो अक्सर लोग को नहीं पता, और ये मैं आपको हार्डकोर फैक्ट बता रहा हूँ. और जिस जिसका मैं नाम लेने लगा हूँ वो तीनों हजरात अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, और मैं समझ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत भी दे और जिंदगी भी लंबी दे. मैं, मोहसिन बेग, मेजर आमिर, हम मलिक रियाज के घर बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, उनके साथ बैठे हुए थे, वहां पे चाय पी रहे थे. मलिक रियाज को फोन आया, उन्होंने कहा कि मुझे जलील ने बुलवाया, तो तुम लोग इधर ही बैठो. हमने कहा कि भाई ये पता नहीं कितना देर हो जाए. उनका नहीं बस मैं गया थे आया तो तुसी बैठो. तो हम लोग बैठे वहाँ पे, हम चाय पी रहे हैं. तो अब कोई आधे पौने घंटे के बाद मलिक साहब आए, और अब उन्होंने कहा कि तुसी बस बैठो, मैं आना 15-20 मिनट नहीं, चलते घंटे. मैं कहा हुन कितने चले हो? मोहसिन बेग ने भी पूछा, मेजर आमिर ने नहीं पूछा. अरे मुझे बिल्कुल क्लियर याद है, यानी मुझे वर्ड टू वर्ड मुझे याद है. उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ पैगाम देन चले हैं कि अज इस्तीफा दे दें, वरना अच्छा नहीं होएगा और गिरफ्तारियां हो जाएंगी. तो हम बड़े खुश, हम बड़े एक्साइटेड थे. तो मैंने कहा मैं इमरान ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ. कहते हले नहीं मैनू उधरों आन दे, फिर जवाब जो भी होएगा फिर मैं खर्च. अब एज्यूम हम कर रहे थे 15-20 मिनट की एक शॉर्ट मीटिंग हुई. तो अब मलिक रियाज साहब गए वहाँ पे पीएम हाउस में, और तकरीबन 2 घंटे के बाद आई. अब रात के खाने का टाइम हो रहा था. तो अब तो बड़ी टेंशन, फोन करें फोन बंद, फोन करें फोन ना आंसर हो उनका. वे पता चल गया, ये भी पता है हमें किस काम के लिए गए हुए हैं. तो ये भी नहीं है ना कि आप उठ जाएंगे वहां से, इतनी बड़ी न्यूज के बगैर आप उठ जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता. तो आप बैठे हुए उसी सोफे पे. 2 घंटे के बाद जब मलिक साहब आए, तो मलिक साहब की वो जो रानाइयां थी ना चेहरे की, वो काफी मांद पड़ी हुई थी. हवाइयाँ उड़ी हुई थी. तो और उन्होंने कहा कि आज मोहसिन बेग साहब ने कहा फिर रिजाइन दे रहे हैं मियां साहब. कहता नहीं, वो तो आराम नाल बैठे. तो मैं कहा आराम क्या मतलब बैठे, कितनी टेंशन होगी अभी? कहते मुबशिर उन्होंने कोई टेंशन नहीं हैगी, वो बड़े आराम नाल बैठे ने, वो सुकून वाले कहते मैं इधर ही बैठा हूँ, जो करना है कर लो, ठीक है ना, मैं रिजाइन नहीं कर. तुम खुद से उठा के लेके जाना है, जो मर्जी करना है कर लो, उसके बाद वो फिजल आउट हो गया मामला. बट यहां तक अटेम्प्ट हुआ है नवाज ये शरीफ तो को मुबशर